Hello, hello, dear students. Let's start integration. From this chapter, according to 2020 examination, there are 3 questions. One question of 1 mark in section A, one question of 2 mark in section B, and one question of 4 mark in section C. Total 3 questions of 7 mark asked from this chapter. Before to start this chapter, you have to revise all the formulas of trigonometry, which I have given in yesterday's class. So, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इट मीन्स डिफरेंशिएशन में जो आंसर होता था वही इंटीग्रेशन में क्वेश्चन होगा. जो क्वेश्चन हो जाता वो आंसर, राइट. फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, यू नो, स्मॉल एफ एक्स. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, and these integrals are called indefinite integral or general integrals because c is not a constant value, it's a indefinite or general value. That's why it is called indefinite integral. From the geometric point of view, an indefinite integral is the collection of the family of curves, each of which is obtained by tracing one of the curves parallel to itself or downwards along the y-axis. For example, if you will draw y is equal to x square like this, then value of c changes, plus 1, plus 2, minus 1, minus 2. According to this, the curve will draw parallel to the given curve. This is the geometric representation of the integration. Now, some important formulas of integration. So, differentiation of integration of x to the power n. For this, you have to find out the function whose differentiation is x to the power n. For example, x to the power n plus 1 upon n plus 1, it's a differentiation. N plus 1 into x to the power n. N plus 1 is cancelled by n plus 1, and remaining here x to the power n. So, integration of x to the power n will be equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Similarly, integration of 1 upon x to the power n will be equal to x to the power n minus n plus 1 upon minus n plus 1 plus c. And differentiation of x, you know, 1. So, integration of 1 will be equal to x. Okay. Differentiation of e to the power x is e to the power x. So, integration of e to the power x also be e to the power x. Differentiation of a to the power x, you know, a to the power x into log a. So, integration of a to the power x will be equal to a to the power x upon log a plus c. Differentiation of log x, you know, 1 by x. So, integration of 1 by x is equal to log x. Differentiation of sin x, cos x. So, integration of cos x will be equal to sin x. Differentiation of cos x is minus sin x. So, integration of sin x will be equal to minus of cos x. Same as differentiation of tan x, you know, sec square x. So, integration of sec square x will be equal to tan x. Differentiation of sec x, you know, sec x tan x. So, integration of sec x tan x will be equal to sec x. Differentiation of cot x is minus cosec square x. So, integration of cosec square x will be equal to minus of cot x. Differentiation of cosec x is minus of cosec x into cot x. So, integration of cosec x into cot x is minus of cosec x. तो आपने एक बात नोटिस करी, डिफरेंशिएशन में लेफ्ट में सी आ जाता तो राइट में क्या लगता था, माइनस. ओके. एंड इंटीग्रेशन में राइट में ही सी और राइट में ही माइनस. ओके. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. So, you know, differentiation of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square, and cos inverse x is minus 1 upon under root 1 minus x square. So, integration of 1 upon under root 1 minus x square will be equal to sin inverse x, otherwise minus of cos inverse x. Same as differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, and cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square. That's why integration of 1 upon 1 plus x square will be equal to tan inverse x, otherwise minus of cot inverse x. Same as differentiation of sec inverse x, you know, 1 upon x under root
x square minus 1 and cosec inverse x is minus 1 upon x under root x square minus 1. So integration of this will be equal to sec inverse x, otherwise minus cosec inverse x plus c. Properties. We have two properties already studied in differentiation. First, constant into function. Then constant बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा? फंक्शन का ओनली. फॉर एग्जाम्पल, आप और पापा जी, आप मीन्स कांस्टेंट और पापा जी मतलब फंक्शन. पापा जी के फ्रेंड की बेटी के मैरिज में गए, पापा जी के फ्रेंड है. ओके, तो अंकल किन से बात करेंगे? आपसे या पापा जी से? पापा जी से. तो आप कहाँ जाओगे? बाहर. अंकल किन से बात करेंगे? जो पापा जी से, मतलब पापा जी का इंटीग्रेशन. राइट. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, मतलब addition and subtraction of two different functions. So integration will separate for fx like this and gx like this, right? And we have three methods of integration: integration by substitution, integration by parts, integration by partial fraction. Integration by substitution. Substitution में एक्चुअली क्या होता है, हम लोग वेरिएबल को रिड्यूस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और फंडामेंटल वेरिएबल में, इंटीग्रल में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ tan x log sec x होता है या फिर माइनस log cos x होता है, दोनों ही होते हैं. log sec x को प्रूफ करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x, ये किया. नाउ सब्स्टिट्यूट sec x इज इक्वल टू t. अब क्या होता है, डिफरेंशिएशन में आप t कंसिडर करते जाए तो डायरेक्ट चेंज हो जाए, लेकिन इंटीग्रेशन में अगर t में कन्वर्ट करोगे तो dx को भी किस में चेंज करना होगा? dt में. तो उसके लिए क्या करना होता है बेटा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. इसको लेफ्ट साइड में अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में करना, और थीटा है जो थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज डिफरेंशिएट करना. सो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x, और t का dt बाय dx. dx यहाँ आ जाए. सो इन द प्लेस ऑफ sec x tan x dx वी कैन राइट dt, and in the place of sec x we can write t. तो 1 upon t dt will be here, 1 upon t dt, right? So 1 upon x का इंटीग्रेशन होता है log x, सेम एज 1 upon t का log t प्लस c. t की वैल्यू वापस sec x. अदरवाइज tan x को you can write sin by cos. cos x को t कंसिडर करिए जो sin x अपने आप हट जाएगा, राइट? माइनस dt. सो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 upon t का log t, t की वैल्यू वापस. Similarly, you can do integration of cot x is equal to log of sin x plus c. You can see and do this. If you have any problem, then ask me. Similarly, integration of sec x is log of sec x plus tan x. For this, we will multiply and divide by sec x plus tan x. Okay? And open this. After this, we will consider sec x plus tan x is equal to t, then differentiate with respect to x. So its differentiation, sec x का differentiation होगा बेटा sec x tan x, and tan x differentiation is sec square x, and t's differentiation is dt by dx. Now this, in the place of this we can write dt, and in the place of this we can write t. So 1 upon t dt. So log of t plus c, t की वैल्यू वापस sec x plus tan x plus c. Okay, same as you can do integration of cosec x will be equal to log of cosec x minus cot x plus c. So you have to do this. If you have any problem, then ask me. Next, some standard substitution you have already studied in differentiation. So revise this. If you have any problem, then ask me. Now, integration of some special functions. 13 IMP formula of integration. ये जान है इंटीग्रेशन की, इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा. ओके, इनके बिना इंटीग्रेशन अधूरा है बेटा. सो हुआ क्या था कि डिफरेंशिएशन तो पूरा कंप्लीट हो गया था, न्यूटन ने पूरा कंप्लीट कर दिया था, लेकिन इंटीग्रेशन में कुछ फंक्शंस ऐसे थे जिनका इंटीग्रेशन नहीं बना था, तो बाद में साइंटिस्ट ने मिलकर उसको डेवलप किया. ओके, तो उसी में से 13 IMP फॉर्मूले. सो फर्स्ट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड 4 फॉर्मूलेज इन सब्स्टिट्यूशन मेथड. इंटीग्रेशन ऑफ tan x log sec x, अदरवाइज माइनस log cos x. cot x का इंटीग्रेशन बेटा log sin x. sec x का log sec x प्लस tan x. cosec x का log cosec x माइनस cot x. नाउ अब 3 के ट्रिपलेट में ये फॉर्मूले हैं, 3 ट्रिपलेट में. तो फर्स्ट ट्रिपलेट ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर डी एक्स, एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स.
सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा कुछ लग रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होता है, बस 1 के प्लेस पर क्या आ गया ए स्क्वायर। सो tan इनवर्स एक्स की फॉर्म में इसको याद रखेंगे tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। वहाँ 1 हो जाता तो 1 रह जाता, ए है तो ए आ जाता है, ए के प्लेस पे कोई कांस्टेंट आएगा 3 4 तो वो आ जाएगा, राइट। सिमिलरली 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर वेरिएबल पहले रहेगा और यहाँ कांस्टेंट पहले रहेगा बेटा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। नाउ आप ऐसे याद रखिएगा, अगर वेरिएबल पहले है ना तो सोनू और कांस्टेंट पहले है बेटा तो मोनू। अब सोनू इज ए गुड बॉय, मम्मी क्या चीज रहा ये तो इधर आता है तो गुड बॉय, और मम्मी क्या चीज इधर आई ये तो उधर जाता है तो बैड बॉय। तो सोनू इज ए गुड बॉय तो माइनस तो माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, और मोनू बैड बॉय है तो माइनस का अपोजिट क्या लगेगा प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस। ओके, अब सेकंड ट्रिपलेट, ये तीनों एक जैसे ही है बेटा। अब इन्हीं फॉर्मूले में जो आपने पहले देखें, इन तीनों में यहाँ से रूट लगाना स्टार्ट करिएगा डिनोमिनेटर से, थर्ड फॉर्मूले से। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कुछ ऐसा ही है साइन इनवर्स एक्स जैसा। ए के प्लेस पर अगर 1 आ जाए तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो वी कैन राइट इट साइन इनवर्स एक्स बाय ए। नाउ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों ही केस में लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज जो है जैसा है वैसे लिख दीजिए प्लस सी, राइट। नाउ अब ये तीनों फॉर्मूले बेटा नोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये काफ़ी बड़े फॉर्मूले हैं और एक नंबर में ये डायरेक्ट पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा बेटा और याद भी कर लीजिएगा। 1/2 एक्स, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं x/2 फिर एज इट इज, फिर ए स्क्वायर के फ्रंट का साइन, यहाँ ए स्क्वायर के फ्रंट में क्या है प्लस, यहाँ ए स्क्वायर के फ्रंट में क्या है माइनस, यहाँ पर प्लस। नाउ अगेन 1/2 ए स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में रखते हैं ना बेटा, तो जो फॉर्मूले बनते हैं ना ये सारे लिख दीजिए, जस्ट लाइक साइन इनवर्स एक्स बाय ये रहता है तो log of x plus as it is, and for this one log of x plus as it is plus c. Okay, after this second method is by parts, otherwise product rule। कुछ नहीं है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड्स इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन। ओके, और इसमें जो अभी प्रॉब्लम आती है कि किसको फर्स्ट कंसिडर करना है किसको सेकंड, क्योंकि फर्स्ट का यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर डिफरेंशिएशन ओनली हो रहा है, और सेकंड का यहाँ भी इंटीग्रेशन और यहाँ भी इंटीग्रेशन। तो सोच समझ कर आपको फर्स्ट फंक्शन लेना होता है, क्योंकि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है उसी को फर्स्ट लेना है, और सेकंड उसी को लेना है जिसका इंटीग्रेशन आता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहले फंक्शन आएगा वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड। फॉर एग्जांपल e⁻x sin x dx, तो sin x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और e⁻x है एक्सपोनेंशियल। तो आप इसमें देखिए आइलेट में ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड कंसिडर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वी हैव 3 cases, case 1, case 2 and case 3, but before this you have to know what is proper fraction and improper fraction। proper fraction वो होती है बेटा when the degree of numerator is less than the denominator की पावर कम होती है डिनोमिनेटर से प्रॉपर, और प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। improper fraction when the degree of numerator p of x is greater than the denominator, तो ये होता है improper फ्रैक्शन। इसके लिए क्या करना होता है, इसको डिवाइड करते हैं नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको ऐसे लिखते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्म में लिखते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब ये जो p1x और q of x ये किस फॉर्म में आ जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। नाउ यू कैन एक्सप्रेस दिस एज द सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें वी हैव 3 केसेस, फर्स्ट
व्हेन डिनोमिनेटर बी लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। जब ये हम लोग पढ़ेंगे तो इसको ठीक से रिवाइज करेंगे, ओके, डिटेल में। सो लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, ये लीनियर है, x की पावर 1 है इसलिए लीनियर, और इसका होल स्क्वायर नहीं है तो ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हो इस फॉर्म में, a अपॉन एक्स माइनस ए एंड b अपॉन एक्स माइनस बी, a और b कॉन्स्टेंट। व्हेन डिनोमिनेटर भी लीनियर एंड रिपीटिंग, ये लीनियर है, x टू द पावर 1 है बट रिपीटिंग है कि होल स्क्वायर है, सो पहले 1 पावर फिर 2 पावर। व्हेन डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग, ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर बट रिपीट नहीं हो रहे हैं, बस होल स्क्वायर नहीं है, सो अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के नोमिनेटर में क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी, अगर यहाँ स्क्वायर क्या है एक्स, ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी है तो सी एक्स प्लस डी, क्योंकि बी बी सी हो गया, सी एक्स प्लस डी लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस केस में जा रहा है क्वेश्चन, उसको पहचाना, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के ही आते हैं बेटा एनुअल एग्जामिनेशन में, ओके। नाउ प्लानिंग फॉर डूइंग इंटीग्रेशन इन अ प्रॉपर वे। सो हम लोग सबसे पहले करेंगे एनसीईआरटी बुक से 7.1 एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 फ्रॉम एनसीईआरटी विद एग्जांपल। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट आर डी शर्मा। आर डी शर्मा से हमने 14 टाइप्स में डिवाइड किया है आर डी शर्मा को, यू कैन सी दिस, एंड आफ्टर दिस 14 टाइप्स के बाद लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेंगे। बस इतना करने के बाद कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन डू वेरी इजीली, ओके। तो इतना पहले आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट 7.1 फ्रॉम टुमारो, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट 7.1। थैंक यू।